Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about the law of supply. In the last lecture, we have learned about the variation of supply, variation, changes, and also supply schedule. I have taken all the three together because हमने law of demand में वो सब पढ़ा है. ओके, एज इट इज सेम टू सेम है. सिर्फ वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर था, यहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर है. एंड वहाँ पे इट वॉज व्हाट विल से देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप. यहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. सो आई हैव टेकन ऑल द थ्री कंसेप्ट टुगेदर. If you all didn't understood, okay, if you all felt like no, it's we are not able to understand, you all can ask me. And now I'm going to take law of supply. Today I'll be taking introduction, statement and assumption. In the next lecture I'll be taking exception and cost and revenue concept. Okay, so let us start. If you all have any doubt, you all can ask. I'll be taking one lecture in Zoom app, so that whatever doubt you all have, you all can ask me. Okay, I'll be there in front of you, so you all can easily correlate with me. And if you all have any doubt, you all can ask me. So let us start with the today's lecture, that is exceptions to the law of supply. Okay, sorry, law of supply. Let us start with the law of supply. Law of supply is asked for 8 marks in the board exam. Okay, it is important in answer in detail. Basically, in answer in detail, the law of demand or law of supply or law of DMU has been asked. Sometimes they ask it for 4 marks also. Say for example, in the last year's question paper, you'll see law of DMU was asked for 4 marks. Okay, and sometimes they asked for 8 marks also. So if you'll observe that either law of demand, either law of supply or law of DMU, all the 3 laws are very important. Go through it. Okay. And if it is asked for 4 marks, so how you have to write? If it is asked for 4 marks, so you have to write introduction. Okay, then you have to write statement of law. Okay, and then you have to write diagram. So you have to draw a diagram, you have to make a table, and you all can just write the points of assumption and exception. Don't write the sub points. If you are writing just points for assumption and exception, it will work. You can get 4 marks. Okay, statement of law is important if you're writing the law, and whereas introduction is there, you have to just write it. The law was introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics at the year. Okay, so introduction is very short part. So if you think that if you're just writing introduction, you're further writing without statement of law, so it will not work. You have to write the statement of law if the law is asked in the exam. Okay. In the board exam, the marks has been bifurcated for each and every answers. So first we'll complete the portion. At the end of the portion, I'll show you all the bifurcation of the marks. So now let us start with the introduction. Okay, introduction is asked for 1 marks and statement of law is asked for 1 marks. Okay, so the first introduction. In introduction, if you're writing in your own word also, मतलब इंट्रोडक्शन में अगर आप अपने वर्ड में भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा. लिखना क्या रहता है, ये लॉ कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ और कब पब्लिश्ड हुआ और किसने इंट्रोड्यूस्ड किया. ओके, व्हेन वाज द लॉ इंट्रोड्यूस्ड, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द लॉ एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड. स्टेटमेंट यू हैव टू राइट एज इट इज. स्टेटमेंट जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ओके, सो इन इंट्रोडक्शन यू कैन सी द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. Law of DMU was also introduced by Alfred Marshall. Law of demand was also introduced by Alfred Marshall, and law of supply is also introduced by Alfred Marshall. So law of supply was introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1819. ये लॉ इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड मार्शल, जो उनके बुक में उन्होंने पब्लिश किया था कंसेप्ट को. बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, एंड वो बुक पब्लिश हुई थी 1890 में. ये 3 चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है याद से. ओके, व्हाट डज दिस लॉ एक्सप्लेन? ये लॉ एक्सप्लेन क्या करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप. ओके, फंक्शनल मतलब फंक्शन है किसके बीच में? सप्लाई के बीच में और प्राइस के बीच में. कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट. ओके, सो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है. ये लॉ एक्सप्लेन करता है. तो इंट्रोडक्शन में इफ यू राइटिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे, सो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक Principles of Economics, which was published in 1890. Second point you have to write, the law explains functional relationship between price and quantity supply. इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट लिखना है, किसने इंट्रोड्यूस किया और ये लॉ एक्सप्लेन क्या करता है. ओके, नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ लॉ.
स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स। एक मार्क्स में आपको इसको स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स, मतलब वो लॉ का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो ये लॉ स्टेट क्या करता है, लॉ क्या बोलता है, व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स। फर्स्ट पॉइंट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे चीज़ें कांस्टेंट है। बाकी सारे चीज़ें कांस्टेंट मतलब जैसे डिमांड में अदर फैक्टर्स थे जो डिमांड को डिटरमाइन करते थे, वैसे सप्लाई में भी अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टैक्स हो गया, ये सारे अदर फैक्टर्स है। तो बोल रहे हैं अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट, सिर्फ क्या लिया उन्होंने, प्राइस। क्यों प्राइस है, बिकॉज प्राइस इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे कि डिमांड में प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वैसे सप्लाई में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा कमोडिटी का, मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। यू कैन सी हायर प्राइस रहेगा तो मोर क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, जितना ज़्यादा दाम रहेगा कोई भी कमोडिटी का मार्केट में, वो जो भी कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है, अगर उसका मार्केट में ज़्यादा दाम है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, उतनी ज़्यादा वो क्वांटिटी सप्लाई करेगा। लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, जितना कम दाम रहेगा प्राइस कमोडिटी का, उतना कम वो सप्लाई करेगा। सो आप देख सकते हो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू ब्रेक into small sentence and you can write the first you will be writing other thing being constant। okay, statement of law हमेशा ये sentence से आपको start करना रहता है। other thing being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, lower the price of a commodity, less is the quantity supplied। okay, you can see it's like opposite words। in this you are not in this you are not writing opposite, but you can see higher, more, lower and less। now in simple words, other factors remaining constant, बाकी सारे factors remain constant है, इसको explain किया। rise in price, rise in quantity supplied, price बढ़ेगा तो quantity supplied बढ़ेगा, vice versa मतलब उल्टा, अगर fall होता है तो supply fall करेगा। ओके, तो rise in price, rise in quantity, other words में इतना ही याद रखना है कि rise in price, rise in quantity, fall in price, fall in quantity। so rise in price, rise in the quantity supplied, vice versa। ओके, thus there is a direct relationship। अगर आप इसको देखोगे कि you can see if it is rising, both is rising, okay, price and supply, and it's falling, both is falling। so you can see there is a direct relationship, किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि हम इसमें प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है। सिम्बॉलिकली हमको ये लिखना रहेगा, अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये सिम्बॉलिकली आई हैव टू मेंशन। ओके, सो एस एक्स इज इक्वल टू एफ P and X। you can write simple in the simple form also, supply is function of price। ओके, ऐसा लिख देना है, सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। उसके बाद आपको इधर x डाल देना है, इधर x डाल देना है, लेकिन याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, s इज इक्वल टू एफ एंड ब्रैकेट में p। तो सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, अभी क्या है कमोडिटी, इसलिए हमको उधर x लेना है। ओके, तो सिम्बॉलिकली s supply of a commodity is equal to function of price of a commodity। so S is supply, X is commodity, F is function and P is price। okay, it's very easy, all the law is very easy। now let us see the diagram and graphical presentation। okay, then we'll be doing assumption and exception। now let us see the supply schedule, okay, and graphical representation of a supply curve। okay, so in supply schedule there is a price of a commodity X and then there is a supply of a commodity X। price you have to take in rupees, and as it is a quantity commodity so you have to take in kg। okay, अभी जब 10 रुपीज़ था तो कितना सप्लाई किया प्रोड्यूसर ने, सप्लायर ने 100, प्राइस बढ़ा 20 हुआ तो 230 हुआ तो 340 हुआ तो 450 हुआ तो 500। so this explains a direct relationship between price and quantity of a commodity supplied। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है
जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है। ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है सप्लाई कम होता है। सो ये आपको बनाना है, इसका एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट ऑफ योर ओन मार्क्स. Diagram consists of 1 marks and that schedule consists of 1 marks. Okay, now let us see the schedule. Okay, you can see here you have to write price and here you have to write quantity supplied. Okay, price में वो tables है 10, 20, 30, 40, 50 and quantity supplied 100, 200, 300, 400 and 500. So when the price was 10, quantity supplied कितना था 100 था, फिर वो बढ़ गया, कितना हो गया 200 हो गया, 20 हुआ तो 30 हुआ तो 300 हो गया, 40 हुआ तो 400 हो गया एंड 50 हुआ तो 500 हो गया. सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है. तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है. ओके, पॉजिटिव है एंड अपवर्ड है ये, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. ओके, पॉजिटिव स्लोप जो कैसे स्लोप कर रहा है अपवर्ड, कैसे स्लोप कर रहा है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये स्लोप अपवर्ड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप जब ये बनाते हो तो आपको लिखना रहेगा इन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड, ऑन द वाई एक्सिस देयर इज प्राइस. ओके, एंड फिर उसके बाद आपको इस कर्व के बारे में बताना पड़ेगा कि ये कर्व कैसे स्लोप कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Okay, this also you can write of your own. Okay, this two explanation is for 1 marks, considering the diagram and schedule. Okay, now let us see the assumption. इसके बाद हम assumption देखते हैं. So let us start with the assumption and exceptions in the board exams. Either assumption or exception, whatever is asked for 3 marks. Okay, and few days back one student was asking that ma'am, if assumption and exception is asked for 3 marks, so it is possible that we can write 3 points only. So see students, if you are proper with your answer, if it is reliable or it is accurate, you all can write. Okay, but if you have enough time, अगर आपके पास पेपर लिखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 6 पॉइंट्स मेंशन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज व्हेन योर मार्क्स एक्सीड्स, मतलब जब आपके मार्क्स ऐसे होते हैं कि हाँ पूरा अच्छे से लिखा है, तो व्हाट हैपेंस, डोंट गिव एनी एग्जामिनर चांस टू रिड्यूस योर मार्क्स एट एनी पॉइंट. ओके, सो बिकॉज एट लास्ट व्हेन योर मार्क्स एक्सीड वी ऑल्सो सी द क्वांटिटी. ओके, सो हाँ 6 पॉइंट्स है तो चलो मार्क्स देना पड़ेगा, बहुत पॉइंट्स लिखा है. ओके, तो ऐसे हो जाता है. इसीलिए माई एडवाइस विल बी इफ़ यू ऑल हैव अ टाइम देन ओनली, बिकॉज इकोनॉमिक्स में व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करना होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसपी एंड ओसी. बहुत सारे होते हैं, आंसर द फॉलोइंग होता है, डिफाइन होता है, अग्री एंड डिसएग्री होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये छोटे छोटे करके बहुत सारे रहते हैं. तो अगर आप एक एक को डिटेल में इफ़ यू आर राइटिंग, ओके, तो पेपर छूटने के चांस होते हैं. तो डोंट टेक दैट रिस्क. I'll be giving you all how to write the paper, that time management, not now. Let us first complete the portion. Okay, so go with the points. If you are reliable, go with the 3 points. If you have less time, if you have enough time, go with the 6 points. Okay, now let us start with the assumption. As while teaching the law of supply in statement of law, ओके, आई हैव टोल्ड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, अदर फैक्टर्स जो होते हैं उसको हमने क्या बोला था, कांस्टेंट बोला था. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं. ओके, इसको हमने कांस्टेंट बोला था. तो हमने लिया क्या था, प्राइस लिया था. ओके, प्राइस क्यों लिया था, क्योंकि प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ओके, जैसे कि डिमांड में इंपॉर्टेंट फैक्टर था, प्राइस के बारे में हमने पढ़ा पहले ही, बाद में हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा. ऐसे ही सप्लाई में भी प्राइस जो है इट्स वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इसलिए अल्फ्रेड मार्शल जो है, ओके, अल्फ्रेड मार्शल ने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिया, वो क्या लिया, प्राइस, एंड बाकी अदर फैक्टर्स को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है. ओके, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया है ताकि हम इसको और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ सकें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अदर फैक्टर्स. अभी ये लॉ पढ़ने के लिए तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा जब हम अज्यूम करेंगे, जब हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ओके, अगर इसमें चेंजेस आता है तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी चेंजेस आता है. इसलिए हमको ऐसा मान के चलना है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सबसे पहला है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, COP जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी ये बोला है कि कांस्टेंट है, इसमें चेंजेस नहीं है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले तो होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है,
ओके जब प्रोड्यूसर गुड्स बनाते हैं उसमें जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, चाहे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो ये जितने भी गुड्स बनाते हुए खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरा जो प्रॉफिट है, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन ओके जब उसका खर्चा बढ़ता है तो उसका हमेशा प्रॉफिट, मुनाफा जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। तो वो मुनाफा कब ज़्यादा कमाता है, जब वो कम से कम बिजनेस में लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर उसने ज़्यादा लगा दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो वो सप्लाई जो है, अगली बार जब वो गुड्स बनाएगा तो वो कम गुड्स बनाएगा। ओके तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आता है तो सप्लाई में भी चेंजेस आएगा। ओके मेरे आई एम गोइंग विद द टेक्स्ट बुक, सो बेटर यू ऑल्सो हैव योर टेक्स्ट बुक। ओके इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा अज्यूम किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदलता है तो प्रॉफिट बदलेगा। बदलेगा कैसे, मतलब बढ़ा या कम हुआ, तो प्रॉफिट अगर बढ़ा तो प्रॉफिट कम, कम हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो अगर चेंज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा। देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। इसलिए वो क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा मार्केट में। ओके सो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ओके टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आप बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हो, आप मशीन यूज़ करते हो। तो जितनी अच्छा टेक्निक या जितना अच्छा मशीन आप अपने प्रोडक्शन में लगाओगे, अपने बिजनेस में लगाओगे, अपने प्रोडक्शन में लगाओगे, उतना ज़्यादा आप सप्लाई कर सकते हो। ओके सो इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। हमको क्या अज्यूम करना है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मे लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर अच्छा टेक्निक है, अगर इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड मतलब अच्छा टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। इम्प्रूव प्रोडक्शन, इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दिस इन टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस। तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। ओके तो कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द थर्ड इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। ओके अभी जो कभी कभी देखो नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो क्या होता है बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है अपने आप, क्योंकि डैमेज हो गया तो आप फिर से प्रोडक्शन कर नहीं सकते। ओके सो नो चेंज इन वेदर कंडीशन, इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मतलब वेदर जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं, ऐसा होता नहीं है। बट हमको ये लॉ पढ़ने के लिए सब मान के चलना है, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। अगर हम मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ प्राइस लिया है, ओके अब अदर फैक्टर बदलने लगेगा तो फिर वो लॉ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि वेदर कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पर ऐसा होता नहीं, सिर्फ हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हमने प्राइस लिया है। सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड अर्थक्वेक में डिक्रीज द सप्लाई। अगर ऐसा कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ कुछ होता है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमारा जो सप्लाई है वो क्या कम हो जाएगा। ओके देन फोर्थ इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी जो गवर्नमेंट जो बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, ओके टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गई, ये सब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए बनाती है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रही है, ज़्यादा पॉलिसी इम्पोज कर रही है, रिस्ट्रिक्शन, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा, क्योंकि वो सब टैक्स में या ट्रेड करने में, ट्रेड करते हुए जब आप गुड्स यहाँ से वहाँ ले जाते हो तो आपको बहुत सारे टैरिफ्स भरने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो सप्लाई भी चेंज होगा। It is also assumed that government policies like taxation policy, trade policy etc. remain unchanged, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। ओके देन फिफ्थ इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब गुड्स बनता है लेकिन उसको सप्लाई करने के लिए मार्केट में या जहाँ पे भी प्रोड्यूसर सप्लाई करने वाला होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगते हैं। ओके अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है
तो सप्लाई कम होगी। अगर क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा तो अपने आप सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर खर्चा कम है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस होता है तो सप्लाई चेंज होगा। अगर अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो सप्लाई ज़्यादा होगा। अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फैसिलिटी नहीं है तो सप्लाई कम होगा। फॉर एग्जांपल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेज द सप्लाई एट द सेम प्राइस। ओके, देन प्राइजेज ऑफ, उसके बाद नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मतलब प्रोड्यूसर को फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि उसकी कमोडिटी का प्राइस आगे चल के बढ़ने वाला है, तो वो अभी एट प्रेजेंट, ओके, एट प्रेजेंट वो सप्लाई नहीं करेगा। वो कब करेगा? फ्यूचर में करेगा, जब उसको ज़्यादा प्राइस मिल सके। ओके, सो द लॉ ऑल्सो अज्यूम दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि चेंजेस हैं तो क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो वो बाद में सप्लाई करेगा तब जब उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये भी अफेक्ट करता है, लेकिन हमको ऐसा मान के चलना है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, देन प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अभी प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है, से फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर, ओके, अगर प्रोड्यूसर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, अगर प्रोड्यूसर जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, वीट प्रोड्यूस, लेट अस से टेक एन एग्जांपल, 1 kg का मार्केट में 200 है। ओके, वीट का, अगर प्रोड्यूसर वीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको पता चले कि मार्केट में वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मार्केट में उसका प्राइस कितना है? 200 है 1 kg का। लेकिन वहीं पे दूसरा, से फॉर एग्जांपल राइस, ओके, अब राइस का प्राइस जो है मार्केट में बढ़ गया। राइस का प्राइस कितना हो गया? 1 kg का 300 हो गया। तो वो क्या करेगा? वीट छोड़ के वो राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स अफेक्ट द सप्लाई, मतलब इसका दाम सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। अगर इसका दाम बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर जो है इसको नहीं करेगा, फिर इसको करेगा, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर ही कर रहा है, वो कल्टीवेशन ही कर रहा है, वो खेती ही कर रहा है। तो अगर उसको खेती करना है तो वो ऐसी कमोडिटी को सप्लाई करेगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। ओके, तो प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स को क्या बोला है? कांस्टेंट बोला है, क्योंकि अगर प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स चेंज होता है तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा। So prices of the other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may not hold true. मतलब यहाँ पे applicable नहीं होगा, because producer में transfer resources to other product, मतलब producer क्या करेगा? बाद में switch करेगा दूसरे product को। ओके, इसीलिए ये सब क्या हमने माना है? constant है। ओके, now let us see there was a doubt, okay, by the students. That when you're writing total expenditure method, okay, total expenditure method is asked for 4 marks. Okay, so what you'll have to do, if it is asked for 4 marks, explanation will be given for 1 marks, table for 1 marks, and उसमें अलग से थोड़ा explanation दिया है where ED is more than 1, ED is equal to 1, ED and less than 1. तो जब भी ये दिया, ये दिस यू हैव टू राइट फॉर 1 मार्क्स, एंड इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो 1 मार्क आपको यहाँ पे लेना है, मतलब 4 मार्क्स टोटल। ये जो टेबल का एक्सप्लेनेशन है बहुत बड़ा टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी लर्निंग अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, and if anybody is having any doubt, you all can ask me in the next lecture. I will be taking exception and cost margin cost concept and revenue concept, जिसमें से cost concept को क्या किया है, reduce कर दिया है, but एक थोड़ा सा I will be giving one intro part of that so that you all can easily correlate with cost and revenue. Okay, so in the next lecture I will be giving exceptions and cost concept and revenue concept. Okay, if you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.